And मतलब she could not clear JEE mains मतलब and मतलब she admits it मतलब very happily कि I could not clear JEE mains and that's why I opted. Even the state engineering exam I failed miserably and that time I thought कि यही नहीं हो रहा है तो क्या होगा बाकी. So according to you what is more important, hard work, guidance, consistency या फिर only talent can get you through this examination? So in my personal opinion, I might be wrong, but I think talent has nothing to do with this exam. Hello friends, welcome to Target UPSC. Today with us we have Nitisha Jagtap. She has secured 199 rank. To give you a brief introduction about herself, she cleared the examination at the age of 21 years old. She got 199 rank in the first attempt. Secondly, she could be the highest police officer in her respective cadre wherever she goes. So she could be DGP someday. I wish she could be DGP. But more than that, I would request you to give one more attempt and get into IAS because you have all the potential. And basically, ये session लेने के पीछे motive यही है कि how a girl from an humble background started preparation during her college time, majorly prepared through self study. तो majorly इनका preparation पूरा self study से हुआ है and how she motivated herself क्योंकि 21 years में सब लोगों का dream कुछ अलग होता है. Everyone is into social media, job के पीछे भागते हैं and post graduation के पीछे भागते हैं and how she motivated herself to continue into the toughest examination and how she cleared in the first attempt. So to start the interview, I would like Nitisha to tell all our aspirants, जो भी girl students prepare करना चाहते हैं कि आपका educational background क्या था, आपने कहाँ से start किया, आप कहाँ से belong करती हैं? Sir, I was born in Latur, Maharashtra, but I have been educated and brought up in Pune. So I have been staying in Pune since I was 6 years old. So I completed my schooling from DSK School, Pune. And then after 10th standard, I got fairly decent grades. So I thought that science would be a good option. And I was not really aware of things that I was interested in. So, but then towards the end of 11th standard, I realized that probably I should have taken humanities. But I continued till 12th, and then after 12th, I gave JEE mains, which I miserably failed. Then I convinced my parents that this was not the path for me, and I'm not into science. And my parents were always, they had this bottom line that wherever you go, try and be the best version of yourself in that field. So I explained this to them that probably if I get into science, I won't be the best version of myself. So I thought, I was always interested in social sciences. So I took arts then. I got into Fergusson College and I completed my bachelor's in psychology from Fergusson College. तो ये सबसे important चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि 12th में she did her science, gave JEE mains, but could not clear. तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नीट क्लियर नहीं कर पाते, मेंस जेई क्लियर नहीं कर पाते हैं. सो वन फेलियर इज नॉट द एंड. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर मैं एक एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊँ तो क्या होगा. एंड शी इज़ एन लाइव एग्जाम्पल वेयर मतलब शी कंप्लीटली चेंज हर पाथ. ऐसे नहीं कि इन्होंने मतलब उसी को कंटिन्यू किया. शी फॉलोड व्हाट वाज इन हर हार्ट. मतलब कि उन्हें सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ पसंद था, उन्होंने वो कंटिन्यू किया. And she cracked the examination. So one failure, I would like to tell you, for all the girls also, for all the boys also, कि one failure in life is not the end. What you have to do is you have to overcome the challenges, you have to overcome the fears, try a different path and you can achieve your goals. तो ये सबसे important question, मतलब educational background आपने बताया. Next question which I want to ask you is, आपका motivation क्या था to start with civil services preparation? आपने कब start किया? एंड सब लोग जानना चाहते कि कितने घंटे पढ़ाई किया. वेर कॉलेज के साथ प्रिपेयर करना एंड क्रैकिंग इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. एंड मैं ये बोलना चाहता हूँ इनका लास्ट मतलब इनका जो फाइनल एग्जाम था एंड प्रीलिम्स, इट ऑलमोस्ट कोलाइडेड आई गेस एंड स्टिल शी कुड क्लियर द एग्जामिनेशन. तो ये जर्नी जानना चाहते हैं कि कब स्टार्ट किया, क्या मोटिवेशन था, कितने घंटे पढ़ते थे. तो आई वुड लाइक यू टू गिव ऑल द स्टूडेंट्स एन आइडिया अबाउट योर जर्नी. Sir, after 12th standard, actually my mother had cleared state civil services exam, and then she was very much interested in this field. So what she would do is, she never forced me to opt for this field.
but there's this magazine called Competition Success Review. So she used to bring that often, or let's say Manorama yearbook, and I was into trivia like this, or keeping myself aware of current affairs. So I was inclined towards that field, and after 12th standard I thought that probably this is a good career option. So I thought that this can be something I can prepare for, and my mother from time to time she kept on inspiring me that this is not something which people pretend it to be, or some exclusive exam, something that cannot be tackled in the first go. So she always kept on saying that don't believe what others say. I know your abilities. You yourself know your abilities well. So go for it. And she kept on encouraging me. So after 12th standard, like I said, I decided. And in college, so in the first year of college, I opted for a class just to get a rough idea of how the exam is and how you need to prepare and plan. And so I opted for that class, and it was not very serious, like, because I had just started college, so I wanted to attend college as well. And so roughly from December 2018, that is towards the end of my second year, I started preparing along with a good planned approach, like monthly targets and stuff. Yes. And majorly your preparation from 2018 or 2019, it was majorly self-study. Matlab, I wanted to get an idea. I took guidance from a teacher, and he helped me actually, because guidance is very required, as I think. So I was not very good at planning. Like, I used to do stuff randomly. So he said that that's not how you go about. You have to plan for this exam. In the civil services, there's always a thing कि यार you need to be very talented. आपको बहुत talented होना ज़रूरी है. Secondly, but what I think is the right hard work, right direction, and consistency is more important. So according to you, what is more important? Hard work, guidance, consistency, या फिर only talent can get you through this examination? So in my personal opinion, I might be wrong, but I think talent has nothing to do with this exam. तो ये सबसे important part है, talent ये secondary part है. Anyone with an average talent can clear this examination. That is what we wanted to tell you कि ऐसा एक fear मत बनाइए exam के बारे में कि एक बहुत बड़ा fear है कि you have to be top in 10th standard, 12th standard, आपने IIT से examination clear किया होगा या फिर CA, doctors वही crack करते हैं. I would like to ये सब secondary है. The first and most important thing is right direction, right guidance, hard work and consistency. ये सबसे important ingredients है for the success, I guess. Yes. Definitely, I agree. Okay. तो कॉलेज में आपने कितने घंटे आप डेडिकेट करते थी मतलब फॉर योर प्रिपरेशन? So I never concentrated on number of hours, but I would start like before going to college in the morning. I would read newspaper. I used to follow the Hindu, so I made it a point that before leaving for college, I would read newspaper, and then between the lectures, what I would do is brush up a little standard books. Like, let's say I'll take Lakshmikant one day with me. And in between lectures, I used to keep on reading. Plus, a lot of things collided with the syllabus since I had humanities with civil services. So that was a major point for me. And my college used to get over by, let's say, 1:32. Then I used to go home, and then I used to study like till night, late till night. Yes, sir. Next is मैं ये जानना चाहता हूँ कि she comes from Latur. एक important चीज़ when I interacted with her, I came to know about her father's dedication. तो मैं मतलब more than her success, I consider her father to be a real hero. I would like to tell कि how your father contributed to your success. मतलब जो मैं जानता हूँ कि I think it is his success more than yours. Yes, definitely. If you can tell his sacrifice मतलब for your success. Yes. So my father is an LIC agent, and he's based in Latur. But for education, हम first standard से पुणे में आए हैं, तो we have been educated, me and my sister. और my father, उनका यही था कि you should get educated. Education is the best form of social mobilization, and that's how you can empower yourself. तो उनका वही था, एंड ही सेड कि आप लोग चिंता मत करो, आप लोग पढ़ाई करते रहो, वॉट एवर रिसोर्सेज यू नीड, जो कुछ आपको लगता है मुझे बताते रहो, मैं करता रहूँगा. सो वॉट ही यूज टू डू इज एक वीक में 2-3 दिन ही यूज टू कम टू पुणे, एंड देन ही यूज टू ट्रैवल बैक टू लातूर. And the distance is almost 300 kilometers. Yes. What I guess, मतलब in a week you have to travel. मतलब you are 2 days at Pune, 3 days back to Latur.
very hectic for a person, and doing this consistently for I think so 15-20 years. Yes. matlab from first standard, if I guess, Yes. almost 20 He's years been doing that. he's been doing this. matlab you and this is a message to parents also. matlab until you support your kids, until you support your children's, success cannot come. You have to be behind them. agar koi UPSC karna chahta hai, even some girls, if they want to do civil services या जो भी उनका करियर में एम है, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ पेरेंट्स सपोर्ट्स एनीथिंग कैन बी अचीव्ड, व्हाट आई थिंक. एक साइकोलॉजिकल, एक मोरल सपोर्ट होता है, एंड स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर विथ ऑल द एनर्जी. ही कैनॉट, मतलब ही डज नॉट हैव टू फियर कि घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे पास एक ही अटेम्प्ट है, मेरी शादी होगी. सो वाज देयर अ फोर्स फॉर कि नहीं इसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, कि मतलब मैरिज के लिए कुछ ऐसा. सो आई वॉज मतलब मैं खुद को बहुत लकी कंसिडर करती हूँ, बिकॉज मैंने ऐसे कई स्टोरीज सुने जहाँ ऐसे हुआ है, बट वो पूरा टॉपिक था ही नहीं घर पे. मैरिज वॉज नेवर एन इशू एंड इट स्टिल इजंट एन इशू. सो बोथ माई पेरेंट्स, दोनों ने पहले से ही एजुकेशन दे हैव प्रायोरिटाइज्ड ओवर एवरीथिंग एल्स, सो इट वाजंट. She comes from Marathwada region, and there you find such parents, such nice human beings who support their girl child to achieve, who sacrifices for their girl child. तो ये बहुत important है. Boys के लिए बहुत I can see, मतलब boys के लिए सब लोग sacrifice करते हैं, बाहर भेजते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए करना, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई थिंक सो इट वाज अ ग्रेट डिसीजन, एंड मतलब ही इज़ द रियल हीरो फॉर इन योर सक्सेस स्टोरी आई गेस. मूविंग फॉरवर्ड, आपने खुद को डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचाए रखा? मतलब सोशल मीडिया पर इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एंड यू बीइंग इन पुणे, मतलब सो मेनी गुड प्लेसेस टू विजिट, टूरिज्म है, मतलब बहुत सारा घूमने के लिए. 21 ईयर्स ओल्ड आज, इफ यू सी, मतलब दे आर इनटू टोटली डिफरेंट थिंग्स. तो हाउ डू यू सेव योरसेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस? So, social media, like when it comes to Facebook and stuff, my mother suggested me, like she never forced me for anything, but she said that if you avoid, अगर आप अवॉइड करते हो एग्ज़ाम पीरियड के वक्त, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज लाइक यू सेड बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, एंड सोशल मीडिया मोर देन कनेक्टिंग विद फ्रेंड्स मोस्टली सोशल वैलिडेशन के लिए होता है. दैट्स व्हाट शी एक्सप्लेन. सो शी सेड दैट यू नो रादर देन गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड और उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा, if you just sacrifice, it's not even a sacrifice, it's very basic. So अगर आप 2-3 साल उससे अवे रहेंगे तो बेहतर रहेगा. So I was there on Facebook, but then I deleted. मतलब I would like to tell you, मेरे पेरेंट्स का भी यही था कि अभी 2-3 साल मेहनत करो, लाइफ टाइम you would be happy. अभी 2-3 साल मजे कर लो, लाइफ टाइम मेहनत करनी पड़ेगी. मतलब that is what was told to us during my preparation. कि अभी थोड़ा सा मेहनत करना तो लाइफ वुड बी इजी फॉर यू, फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स वुड बी इजी. नहीं तो अगर अभी 3 साल मेहनत, मतलब थोड़ा अय्याशी कर ली तो फिर डिफिकल्ट है. नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द प्लान बी? डिड यू एवर थिंक अबाउट प्लान बी? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है कि अगर ये नहीं तो क्या, मतलब डिड इट कम टू योर माइंड कि मैं क्या करूँगी अगर, मतलब ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन, फीलिंग लो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभी एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लो फील करते हैं कि उनको ये रहता है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्लियर होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, पढ़ाई नहीं हो रही है, मतलब याद नहीं आ रहा है, एक अटेम्प्ट हो गया है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, सोशल प्रेशर्स है. तो हाउ डिड यू मैनेज ऑल दिस फीलिंग्स कि प्लान बी का हो गया, या फिर द फीलिंग ऑफ बीइंग लो समटाइम्स ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, यू आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स इन एनी टेस्ट, तो वो कैसे हैंडल किया आपने स्ट्रेस को? सर आई इमीडिएटली मैंने मतलब अटेम्प्ट दिया मेरे ग्रेजुएशन के बाद, तो मैंने एज सच बैकअप का सोचा नहीं था, बट आफ्टर मेंस आई वाज वेरी एग्जॉस्टेड, एंड लाइक यू सेड काफ़ी लो लगता है, एंड आई वाज अटरली एग्जॉस्टेड, एंड आई थॉट, आई सेड टू माई मदर दैट probably यही टाइम है कि I should start thinking about my backup options. And my mother, I don't know, somehow she was very confident कि नहीं तुम्हारा हो जाएगा, you don't worry. But then I kept on thinking about backup, and that's very obvious. And I think if अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि बैकअप से you know they'll have this mental stability and peace of mind, so I think होना चाहिए, मतलब बैकअप, there's nothing wrong with it.
yes sir, that keeps your mind stable, I feel, during preparation. नेक्स्ट इज बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कॉलेज में हैं, कैसे कौन से ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने चाहिए, हॉबीज़ डेवलप करने चाहिए दैट कैन हेल्प इन देयर प्रिपरेशन? क्योंकि अभी टाइम होता है कॉलेज टाइम में कि जैसे रीडिंग हो गया, रीडिंग बुक्स हो गया, मेंस में यू नीड आंसर राइटिंग, तो ऐसे मतलब लिखना, या फिर जो भी स्कूल स्टूडेंट्स है, तो ऐसे कौन से हॉबीज़ डेवलप करने चाहिए दैट कैन हेल्प इन देयर जर्नी ऑफ सिविल सर्विसेज, दैट कैन बी वेरी हैंडी? जैसे पब्लिक स्पीकिंग कैन बी वेरी हेल्पफुल इन योर इंटरव्यू। सेकेंडली, तो ऐसे आपको क्या लग रहा है कि आपके पास कौन से स्किल्स थे दैट रियली हेल्प यू थ्रू दिस जर्नी वेरी वेल? सर, आई एम नॉट मच इनटू क्रिएटिव राइटिंग, लेकिन मैंने हमेशा कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है, वेदर इट कम्स टू ऐसे राइटिंग और इन जनरल क्रिएटिव राइटिंग. सो आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट मेंस के टाइम पे, like you said. And so I have always been an introverted child from the very beginning. So my mother used to be scared कि ये कुछ बोलेगी नहीं आगे जाके तो कैसे होगा. So she enrolled me into all these public speaking competitions. So since school days मेरा मतलब actively participation. Although I did not win competitions, but just for an experience. Experience, okay. I think that's very helpful. That's very helpful for all the college going students या फिर जो भी 11th 12th में है. So this two things you have to remember. अगर आपको सिविल सर्विसेज या यूपीएससी क्वालिफाई करना है, यू नीड टू हैव गुड कमांड ओवर योर लैंग्वेज, एंड सेकेंडली पब्लिक स्पीकिंग और हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. थर्ड, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि इज लैंग्वेज अ बैरियर? आपको क्या लगता है, आपके फ्रेंड्स बहुत सारे क्वालिफाई कर चुके हैं, कि हैविंग गुड इंग्लिश ये नेसेसरी है, या फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, या फ्रॉम समवन फ्रॉम रीजनल लैंग्वेज जैसे मराठी हो गया, हिंदी हो गया, बंगाली, कैन दे ऑल्सो क्वालिफाई? ऐसा कुछ बैरियर है, यूपीएससी बैरियर देखता है क्या? एनीवन कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन? व्हाट डू यू थिंक? सर, आई थिंक एक मिसपरसेप्शन है अमंग एस्पिरेंट्स कि यू हैव टू नो इंग्लिश एंड गिव द एग्जाम इन इंग्लिश. लेकिन मैंने ऐसे कई एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा है जिन्होंने लोकल लाइक वर्नाक्युलर लैंग्वेज में भी देके क्वालिफाई किया. बट आई वुड लाइक टू से कि अगर आप इंग्लिश चूज़ कर रहे हो, देन यू नीड टू हैव अ गुड कमांड ओवर लैंग्वेज, बिकॉज दैट कम्स इन हैंडी, लेट्स से ऐसे का जो पेपर होता है मेंस में. सो हैविंग कमांड ओवर लैंग्वेज इज ऑलवेज एन एडवांटेज, बट यू कैन गिव इन वर्नाक्युलर लैंग्वेज. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यूपीएससी प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके मन में एक क्वेश्चन होता है कि हाउ वाज योर इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू के बारे में एक एक्साइटमेंट रहता है. मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि इंटरव्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम प्रीलिम्स और मेंस है. इंटरव्यू इज जस्ट 10% ऑफ द होल एग्जामिनेशन, एंड अमंग ऑल द 3 एग्जामिनेशन द मोस्ट, आपको क्या लगा कि कौन सा सबसे मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू? So for me personally, it was mains. Mains आपको difficult है. Mains is mentally exhausting. Yes, it's very exhausting. If you consider competition wise, prelims is the most competitive. Yes. Mains it checks your मतलब mentally it is very exhaustive. 27 hours आपको continuously लिखना है for 5 days. तो मतलब मेरे भी एक्सपीरियंस में ये था कि आफ्टर मेंस ऐसा लगता था कि अब वापस मैं यूपीएससी का अटेम्प्ट नहीं दूंगा. तो ये हमेशा मेरे, और फिर अगले बार वो था कि नहीं फिर से दे, और एक बार एक अटेम्प्ट दे के देखता हूँ, इतने नज़दीक आया हूँ. एंड मतलब लाइफ में एक तो मैं बोलता हूँ कि सबको एक बार यूपीएससी का मेंस दे के देखो, बाकी सब एग्जाम सब कुछ ईजी लगेगा, लाइफ ईजी लगेगी, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट या स्ट्रेसफुल कुछ है नहीं लाइफ में. तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, क्या क्वेश्चन पूछे गए, इफ़ यू रिमेंबर सर्टेन पार्ट्स, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऑडियंस वुड लाइक टू नो कि कितने, हाउ मच डिड यू स्कोर? आपको बाहर निकलने के बाद लगा क्या कि दिस वुड बी योर स्कोर? So I scored 179, which is, I think I could have done much better, but it's fine. मेरा एकदम लास्ट डे को था 22nd September and it was noon session. So I was almost like the third last to go. हाँ, so it was I got TC Anand board. तो इंटरव्यू ठीक ठाक ही गया, एंड देर वरंट वेरी लाइट मोमेंट्स. मतलब जनरली मुझे मॉक्स में ऐसे बोला गया था कि यू आर अ यंग कैंडिडेट, सो प्रॉब्ली दे विल गो ईजी ऑन यू, आपको मतलब थोड़ा कंफर्टेबल कराएंगे और थोड़ा जोक्स वोक्स मारेंगे. सो आई वॉज एंटिसिपेटिंग कि अभी जोक मारेंगे बाद में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बिकॉज आई थिंक दे वर वेरी एग्जॉस्टेड, बिकॉज एकदम इट वॉज टूवर्ड्स द टेल एंड. सो दे गॉट टू द पॉइंट, लाइक सिंस आई कम फ्रॉम लातूर, तो उसका अर्थक्वेक का 93 वाले अर्थक्वेक का पूछा, एंड फार्मर सुसाइड जो मराठवाड़ा रीजन में है, एंड अबाउट माई सब्जेक्ट. सो दे आस्क्ड कि स्पोर्ट्स कैसे एनहांस कर सकते हैं फ्रॉम अ साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, एंड इट वॉज ओवरऑल अ वेरी कॉर्डियल बोर्ड. लाइक दे वरंट वेरी
obsessed with one question and they weren't grilling me as such. So वो अच्छे से मतलब उन्होंने सब मेरा सुना. कोई मतलब इट्स जैसे लोगों को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस है. आई थिंक सो दे आर चेकिंग आर यू ऑनेस्ट, आपके पास इंटीग्रिटी है क्या, आर यू एबल टू कम्युनिकेट द इश्यूज. एंड आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि आपको आया नहीं आंसर, ऐसे था कि सब आंसर्स आपने दिए? नहीं, ऐसे एक दो फैक्चुअल क्वेश्चंस थे. एक साइकोलॉजी रिलेटेड कॉन्सेप्ट था जो मैंने कभी सुना भी नहीं था. सो आई जस्ट ऑनेस्टली सेड दैट सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर. तो मतलब बाहर निकलने के बाद कैसा फीलिंग था? मतलब डिड यू थिंक कि आप क्वालिफाई कर पाओगे या मतलब कैसा? सो आई ऑनेस्टली आई वाज जस्ट सो रिलीव्ड. मतलब हो गया, एक बार का खत्म हो गया. बिकॉज ये कोरोना के टाइम की वजह से एवरीथिंग गॉट एक्सटेंडेड एंड प्लस आई हैड टू वेट टिल द वेरी लास्ट डे. तो मेरे मन में यही था कि चलो हो गया बस. अब आई डू नॉट थिंक अबाउट कि होने वाला है या नहीं. आपको कितना % चांस लग रहा था कि रैंक आएगा? मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब मेरा जब खुद रैंक आया था आई वाज द लीस्ट एक्सपेक्टिंग दैट ईयर. श्रेनिक के बारे में यही बोलना चाहता हूँ कि ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, इंटरव्यू देखे आया, नेक्स्ट डे ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, ही थॉट कि अब नहीं हो रहा है, लेट्स स्टार्ट. व्हाट वाज योर थॉट? कि आपको लगा था कि थोड़ा हिंट की नहीं हो सकता है, या फिर इट वाज लाइक टोटली मतलब? सर लाइक आई सेड, मेंस बहुत डिफिकल्ट टाइम था मेरे लिए. तो जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी, ऑलमोस्ट एवरी एग्ज़ाम के बिफोर आई वाज नॉट इन द करेक्ट माइंडसेट. आई वाज वेरी स्केर्ड. तो उसकी वजह से मुझे चांसेस थोड़े कम ही लग रहे थे. मतलब जब इंटरव्यू के लिए भी हुआ, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड. बट देन एवरीबडी इन माई फैमिली वाज लाइक, नहीं अगर इतना आगे तक आए हो तो हो जाएगा. बट आई वाजंट. ये मतलब दैट इज द सेम फीलिंग. मतलब आई वुड लाइक टू शेयर कि हर एक कैंडिडेट, इवन रैंक 1, दे आर नॉट श्योर. यूपीएससी में मतलब अगर किसी को पहले ही बोल दिया कि आपका रैंक 1 आने वाला है, तो ही वुड ऑल्सो नॉट बिलीव, आई गेस. इट इज़ अ सरप्राइज फॉर, एंड आई कंसिडर इट्स थोड़ा सा इट्स सरप्राइज एलिमेंट है ऑलवेज इन द एग्जामिनेशन. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैसेज यू वुड टेल टू ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू, बिकॉज you have qualified this examination at a very early stage, first attempt, preparing from college, coming from very humble background, and with support of your parents. So what would be your one message to all the girl students also and parents also, because agar jab parents ka support hoga to girls can achieve anything, and I do not see any difference between boys and girls, and you're the real example of women empowerment. And if you see UPSC's result this time, out of 25 first, there's an equal amount this time. It is matlab it shows ki girls and boys are competing at the equal level. So what is a message you would like to tell to all the parents, basically parents and students, girl students, ki that can change their mindset about this examination? Yes. So for students, पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये जो मीडिया परसेप्शन है इस एग्ज़ाम के बारे में कि सिर्फ एक एक्सक्लूसिव क्लास ऑफ स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं, या जो दिल्ली में जाके प्रिपेयर करते हैं वही क्लियर कर पाते हैं. आई थिंक दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग. आजकल इतने ऑनलाइन रिसोर्सेस आ गए. इवन विथ योर टारगेट यूपीएससी, योर इनिशिएटिव्स आर सो गुड, एंड आई हैव many friends who are opting for your prelims initiative especially. So I think online resources are ample, so you can manage well. And I would also like to say that have realistic aspirations. आप अपने abilities को judge करके पूरा इस एग्ज़ाम का नेचर, जो कोई स्टेजेस है वो सब एनालाइज करके ही इस एग्ज़ाम के लिए उतरी है. जस्ट डोंट गिव एन अटेम्प्ट कि ठीक है एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा, ऐसे मत उतरिए. सो इवन व्हेन यू हैव टू गिव योर फर्स्ट अटेम्प्ट, गिव इट लाइक यू गोइंग टू गिव योर लास्ट अटेम्प्ट, is what I would say for students. And have a planned approach, like I said, it's very important. And for parents, I would say that your just being there for your student, for your children might help sometimes, and your emotional support, or knowing a little more about the nature to understand the mental state of students, वो काफ़ी important हो जाता है, because there are many times जब low feel होता है, and the exam to a certain level is quite uncertain. I wouldn't deny that. So इस uncertainty के time पे
the way in which parents can motivate their children, it helps a lot. Especially in my case, it did help a lot. एंड इतना इमोशनली एग्जॉस्टिव प्रोसेस है बिकॉज यू आर टेकिंग रिस्क विथ योर लाइफ. मतलब मैं ये बोलता हूँ बिकॉज यू मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ योर लाइफ you are sitting and studying, and rest of your peers they are into job, they are doing higher studies, so you are taking risk, and इस risk के साथ थोड़ा सा emotional एक meltdown आ जाता है बहुत बार. मतलब मेरे प्रिपरेशन के वक्त भी मतलब देयर वर मोमेंट्स कि मतलब यू आर वेरी लकी टू क्वालिफाई इन द फर्स्ट गो इटसेल्फ. During my preparation or Shrinik's preparation, there were so low points in our journey where we went till the interview, and coming back from interview to prelims, मतलब it takes a toll, and तब एक emotional support होना parents का एक कि नहीं कुछ नहीं होगा, ये नहीं मतलब I always tell my students कि do not make UPSC your life. Secondly, अगर ये नहीं होगा तो इससे भी कुछ अच्छा होगा लाइफ में. मतलब अगर ये फिलोसफी के साथ जाओगे आप तो स्ट्रेस कम होगा लाइफ में. So like you said, I think जो फेलियर के अराउंड स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में इन जनरल, आई थिंक वो कम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नो देयर इमोशनल सपोर्ट एंड देयर मोटिवेशन मीन्स अ लॉट टू देयर चिल्ड्रन, अ लॉट, like much beyond what they imagine it to be. And मतलब she could not clear JEE mains, मतलब and मतलब she admits it, मतलब very happily कि I could not clear JEE mains, and that's why I opted. Even the state engineering exam I failed miserably, and that time I thought कि यही नहीं हो रहा है तो क्या होगा बाकी. Imagine कि अगर मतलब लोग बोलते हैं कि अगर ये एग्जाम नहीं होगा तो मतलब there might be your relatives would be, अरे ये एग्जाम नहीं निकल रहा है तो UPSC कब निकलेगा. तो मतलब ये कुछ नहीं है, सारे मिसकंसेप्शन है मतलब अबाउट दिस एग्जामिनेशन कि यू हैव टू स्कोर 95 प्लस, यू हैव टू बी फ्रॉम IIT टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. इफ़ यू हैव मतलब व्हाट आई से इज़ आपको पता है कि क्या पढ़ना है, किस डायरेक्शन में पढ़ना है, आपकी कंसिस्टेंसी है. मतलब शी इज़ प्रिपेयर्ड, दो इट सीम्स टू बी शी इज़ प्रिपेयर्ड, मतलब शी इज़ क्वालिफाइड फ्रॉम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बट there is an effort of 2-3 years behind all this success. मतलब ऐसे नहीं कि कोई it is a by fluke की first attempt में. I would consider कि it's a very planned approach. तो अगर जो भी स्टूडेंट्स कॉलेज टाइम्स में है प्रिपेयर करना चाहते हैं, इट हैज़ टू बी अ प्लान्ड अप्रोच. सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इफेक्टिव आपका प्लानिंग कर सकते हैं, एंड देन यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आई वुड लाइक टू टेल यू.